Hey sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Matri, a social media professional, a mother and a simple yet sassy woman just like you. Join me for sweet, simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. Hello. Did you see our new cover art and listen to the new jingle? Little Fixes is changing and it's changing for the better. तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले I want to talk about these changes. कवर आर्ट की बात करूं तो फिर से पिंक हो गई है, पर उसमें एक ब्यूटीफुल न्यू एडिशन है बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन, होप, फ्रीडम, रेजिलियंस, लव और ब्यूटी को सिंबलाइज करती हैं. तो आई हैव बीन सीइंग बटरफ्लाइज एवरीवेयर, लाइक रियल बटरफ्लाइज, ओके, since last few months, and even though there was no plan to have them in the art, it just happened thanks to my designer. ये आर्ट हर्ष शर्मा ने डिजाइन की है एंड ही इज ऑन इंस्टाग्राम एज ह्यूज बाय हर्ष. तो मैंने उन्हें एक ब्रीफ दिया था और जब उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा तो आई सजेस्टेड अ फ्यू चेंजेस एंड 2-3 चेंजेस के बाद वी आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट, बट आई देन आस्क्ड हिम फॉर 2 more font options. And when he changed the fonts, he also added butterflies in the art. And everything just clicked. I connected the dots and Little Fixes got this pretty and meaningful cover. See, everything I talk about on the podcast is an effort to help you in transforming into your best self. And I just told you that butterflies symbolize transformation among other things. So it all makes sense now, right? देखो, as women, we are always busy and overlook many big, small and extremely important parts of our lives in the hopes of fixing them soon. चाहे वो एंग्जाइटी हो, इन द मोमेंट रहना हो, मोर मीनिंग इन रिलेशनशिप्स, करियर अपग्रेड, टेकिंग अ ब्रेक और हैविंग अ हॉबी. These are some of the many things on our minds, but we rarely get to them. तो लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट पे मैं और मेरे गेस्ट आपके लिए स्वीट, सिंपल, एक्शनेबल आइडियाज लेकर आते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे ही सही बट इम्प्रूव कर सकें. We discuss everything that matters to you while focusing on mental health, physical well-being, and personal growth. I'm always striving to create meaningful conversations which make you realize that you matter. So I hope you like the new art, the new jingle, and the transformed Little Fixes because some more changes are coming. And please do follow Little Fixes on your podcast app and rate and review us on Spotify and Apple Podcasts. It really helps a lot. Okay, so coming to my routine. I wake up at 6 in the morning and go straight to the kitchen. I cook, then wake Idhaya up at 6:45 and drop her at the bus stop at 7:45. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा हस्बैंड कहाँ रहता है, why doesn't he help? तो let me tell you that he has to leave for work by 6:30 in the morning. So he gets up, gets ready and leaves. I don't have to do anything for him as he has breakfast and lunch at his workplace. So after dropping Idhaya, I go to the gym and work out for about an hour and come back by 9:15. I go to gym on Monday, Wednesday and Friday. On the other 2 weekdays, I do stretching and some affirmations at home while listening to Daily Affirmations for Women by Katie Krimitsos. It's a great podcast, by the way. On these days too, I get done by 9. Then I have my breakfast, have a bath and sit down to work by 11. फिर 11 से 2 बजे तक मैं काम करती हूँ. बट बीच में उठ के once I have my milk, I also cook lunch, which is mostly दाल राइस. एंड देन 2 बजे के अराउंड मैं अपना लंच करती हूँ while watching TV. और मोस्टली मैं फिर जब तक हिदाया नहीं आ जाती तब तक आई कीप वॉचिंग टीवी. कभी कभी आई ब्रिंग माई लैपटॉप या फोन और काम भी करती रहती हूँ थोड़ा और टीवी भी देखती रहती हूँ. आई नो इट्स नॉट द आइडियल थिंग टू डू, बट आई end up doing it a lot of times. Okay, and once Idhaya is back by 3:30, 3:40, उसको लेकर आती हूँ. फिर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उससे बातें करती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ. उसको भरतनाट्यम क्लासेस में ले जाना होता है या फिर उसको पार्क में खिलाने ले जाना होता है. अगर कुछ होमवर्क मिला है तो होमवर्क में हेल्प की ज़रूरत है तो वो करा देती हूँ उसको. और इवनिंग में आई हैव अ कुक फॉर डिनर, तो उस तरफ मुझे नहीं ध्यान देना पड़ता है. बट आई वर्क इन 2 30-minute विंडोज़ इन द इवनिंग. एक तो 7 o'clock के अराउंड मैं थोड़ी देर वर्क करती हूँ और फिर 9 o'clock पे करती हूँ व्हेन इधाया इज़ अस्लीप. और उससे पहले 8-8:30 तक हमारा डिनर, किचन की सफाई सब डन हो जाता है. फिर मेरा वर्क भी मैक्सिमम 10 o'clock तक डन हो जाता है, उससे पहले ही हो जाता है अक्सर.
फिर अगर मेरा मन है तो या तो मैं बुक पढ़ती हूँ या फिर थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, और 11 बजे से पहले पहले आई एम इन बेड. सो दिस इज़ व्हाट माई वीक डेज लुक लाइक. बट वीकेंड्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज सैटरडे और संडे को मैं जनरली काम नहीं करती हूँ. इट्स फॉर फैमिली, इट्स फॉर माई सेल्फ. हम लोग घूमते हैं या घर पे आराम करते हैं. देयर आर एक्सेप्शंस, सो आई विल टॉक अबाउट देम इन अ बिट. अगर आपको ये लग रहा है कि माई रूटीन इज़ अ बिट मिक्सड अप, तो मे बी इट इज़, बट देयर आर many things that help me besides having an understanding husband and a super sweet daughter. So the first thing that helps me is having a schedule. तो एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप घर से काम कर रहे हो. आपको ऐसा लग सकता है कि अरे घर पे ही तो हूँ, अभी कर लूँगी, फिर तब कर लूँगी, अभी खाना बना लेती हूँ, फिर काम कर लूँगी, अच्छा अभी चलो थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, फिर कर लूँगी. मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ काम पे ही लगे रहें और आप अपने ऊपर, घर के ऊपर ध्यान ही ना दे पाएँ. तो इसलिए एक शेड्यूल अगर है तो सही रहता है. जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठ के ये करती हूँ, फिर उसके बाद जिम जाती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होती हूँ और काम करने बैठ जाती हूँ इतने टाइम के लिए. तो हैविंग अ शेड्यूल हेल्प्स यू अ लॉट. इट गिव्स यू डिसिप्लिन ऑल्सो. फिर जो दूसरी चीज़ मेरी हेल्प करती है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, इट इज़ काउंटर इंट्यूटिव बिकॉज इट इज़ डोंट बी टू क्रेजी अबाउट योर शेड्यूल. एक शेड्यूल होना अच्छी बात है, बट वेन यू वर्क फ्रॉम होम यू कैनॉट कट ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम योर होम, योर लाइफ. चीज़ें होती रहती हैं, और अगर आप शेड्यूल के लिए ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओगे तो फिर आप परेशान हो सकते हो. तो रखो एक शेड्यूल, बट अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो उसके हिसाब से काम करो. लाइक अगर मान लो आप बीमार हो गए, या कोई और बीमार हो गया, या फिर कोई आ गया घर पे, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप ये सोचो कि अब आप किस तरीके से अपने काम को मैनेज करोगे. मे बी आप जो आज आपने सोचा था वो आप उसका कोई पार्ट आप कल कर सकते हो, या फिर कोई कम प्रायोरिटी वाला काम है उसको बाद के लिए रख सकते हो. तो परेशान होने की जगह जब आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए. तो हैव अ शेड्यूल बट डोंट बी टू क्रेजी अबाउट इट. नाउ द थर्ड थिंग इज हैविंग थीम डेज. तो थीम डेज के बारे में मैंने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी, और उसको मैं लिंक भी कर दूंगी. दैट एपिसोड वाज अबाउट टाइम मैनेजमेंट आई थिंक. तो थीम डेज का मतलब है कि मैं वीक के जो 5 डेज होते हैं उनको मैं अलग अलग थीम्स दे देती हूँ, एज इन कि मुझे किस दिन किस चीज़ पे काम करना है. जैसे अभी मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ. तो मंडे को एक क्लाइंट हो गया, ट्यूसडे को दूसरा क्लाइंट हो गया, वेंसडे और थर्सडे को आई वर्क मोस्टली ऑन माई पॉडकास्ट. इट हैज़ बिन अ बिग शिफ्ट फॉर मी बिकॉज पहले मैं सिर्फ थर्सडे को पॉडकास्ट का काम करती थी, और उसमें भी ये होता था कि अच्छा आज तो अपना ही काम है, तो आई यूज टू गेट टू रिलैक्स्ड. तो कई बार चीज़ें डन नहीं हो पाती थी. और नाउ आई फील कि माई पॉडकास्ट नीड्स मोर ऑफ माई अटेंशन, तो आई हैव चेंज माई शेड्यूल अ बिट. और मंडे ट्यूसडे को क्लाइंट वर्क, वेंसडे थर्सडे को पॉडकास्ट, फ्राइडे को फिर से क्लाइंट वर्क जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम होता है. बट येस, अगेन अगर मान लो कुछ क्लाइंट वर्क है, कुछ आ गया, तो मैं उसको वेंसडे या थर्सडे में कर लेती हूँ अगर कोई चीज़ अर्जेंट है. या अगर पॉडकास्ट का कोई काम है जो अर्जेंट है तो वो मैं मंडे या ट्यूसडे को भी कर लेती हूँ. इट्स नॉट माई प्रियोरिटी, इट्स नॉट लाइक कि आई गिव इट ऑल डे, बट अगर ज़रूरी है तो मैं थोड़ा टाइम उसको भी देती हूँ. तो इस तरीके से हमारे काम बनते रहते हैं, चलता रहता है काम. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. इस टर्म को मैंने लास्ट ईयर गोल्ड डिगर पॉडकास्ट पे सुना था, और इवन दो आई वॉज डूइंग इट आई यूज टू फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि हमने हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस सुना है, वर्क अलग लाइफ अलग. बट वेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड यू आर अ वुमन और मे बी यू आर ऑल्सो अ मदर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस. तो उसको इम्बैलेंस में जाने देने की जगह इट्स बेटर टू इंटीग्रेट एवरीथिंग. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमारे बच्चे का सोने का टाइम है 9 बजे, बट दैट डे शी सेड कि अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, शी इज़ डूइंग समथिंग. आप उसको हर बार फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं अब भी सो जाओ. तो मे बी शी इज़ प्लेइंग नियर यू, बट यू आर वर्किंग फ्रॉम 9 to 9:30, जो कि मेरा रात में काम करने का टाइम है. या फिर मान लो मैं वीकेंड पे कहीं बाहर घूम रही हूँ फैमिली के साथ, क्लाइंट का मैसेज आ गया कि ये चीज़ करनी है, दिस इज़ एन अर्जेंसी, तो फिर मैं उसको कर देती हूँ. जहाँ तक मुझसे मैनेज हो पाता है ट्राई टू डू इट. और क्योंकि देखो जो क्लाइंट है दे आर डिपेंडिंग ऑन मी, एंड आई हैव चोजन टू वर्क इन सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया वैसे भी काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने टोज पे रहना पड़ता है.
और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं, फॉर्चुनेटली दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी ऑन वीकेंड्स, बट अगर कभी कुछ होता है तो फिर दे टेल मी एंड आई टेक केयर ऑफ दैट. आई डोंट लाइक इट बट आई डू इट एंड आई ऑल्सो डोंट क्रिंज अबाउट इट. करना तो है, अगर आपने चूज़ किया है इस फील्ड में काम करना तो आपको करना है, तो उसको खुश होके कर लो, ज़्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे ना वर्क और लाइफ इंटीग्रेटेड रहते हैं और आप ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, ज़्यादा गिल्ट फील करने की ज़रूरत भी नहीं है. वो कहते हैं ना, जस्ट रोल विद इट. तो आई रोल विद इट and I would also suggest you to do it, especially if you work from home and have a lot on your plate. थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का इन सब चीज़ों में. Because I believe कि learning, growing and having fun while at it, यही तो लाइफ है. और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, या फिर मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करती, बट इन दिस करेंट सीजन ऑफ माई लाइफ आई फॉलो दिस, आई अग्री विद दिस. जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं उनको ब्रेक करके नई चीज़ों को अपनाना ग्रोथ माइंडसेट है. ये मत सोचो कि ये चीज़ मैंने पहले ऐसा करती थी, मैंने कहा था कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, बट नाउ आई वॉन्ट टू डू इट. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जस्ट लीव इट. लेट योर ओल्ड बिलीफ शैटर, फॉर्म न्यू बिलीफ, लर्न न्यू थिंग्स और उसके साथ काम करते रहो. होप यू टुक समथिंग अवे फ्रॉम दिस एपिसोड. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है @littlepixespodcast. ऑल दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. अब मिलते हैं 20 जुलाई को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.